آج پاکستان مسلم لیگ کا 106واں یوم تاسیس ہے اور ہم نے مسلم لیگ کی 106ویں سالگرہ کا کیک آج یہاں کاٹا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے کراچی کے سے تعلق رکھنے والے ہمارے مرکز کے صوبے کے اور جو کراچی کے عہدیدار ہیں، ہم نے بیٹھ کے ایک میٹنگ بھی کی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا اور آج جب پاکستان کو مضبوط کرنے کا وقت ہے تو پاکستان کو انشاءاللہ ہم ہی بچائیں گے۔ مسلم لیگ اور مسلم لیگیوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کو کمزور کر کے پاکستان کی مضبوطی کا خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ مسلم لیگ نے ملک کا استحکام ہو یا جمہوریت کا تسلسل، پاکستان مسلم لیگ نے اپنا اس کا کردار ہمیشہ ادا کیا ہے اور سن 2002 میں بھی جبکہ صدر مشرف وردی میں چیف ایگزیکٹو کے طور پہ پورے اقتدار پر کنٹرول تھا، اس وقت بھی مسلم لیگ نے ایک جمہوری سسٹم کے لانے میں، اسمبلیز کے آنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا اور تمام ایک اسمبلی بنی تھی، ایک منتخب وزیر اعظم بنا تھا، وزراء اعلیٰ بنے تھے، پارلیمنٹ کا قیام ہوا تھا اور اس کے بعد 2008 میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک اور جمہوریت آ گئی جس میں کہ وہ صدر بھی جو وردی میں تھا وہ بھی چلا گیا، تو ہم نے جب جمہوریت پٹڑی سے اتری ہوئی تھی ہم نے جمہوریت کو جو پٹڑی پر چڑھانے میں بھی کردار کیا اور اب 2011 میں جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں اور ملک کے استحکام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ ملک میں ہم نے دیکھا کہ مئی سے لے کے آج تک جو امریکنز نے جس انداز میں پاکستان کو، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو، پاکستان کی سلامتی کو جس انداز میں ہم سمجھ رہے تھے کہ بیرونی طاقتوں کو پریشر میں لینے کی کوشش کی، اس وقت بھی پھر ہم نے جمہوریت کو پٹڑی سے اترنے سے روکنے میں اپنا کردار ڈی ریل نہیں ہونے دیا۔ جمہوریت کا استحکام ہو یا جمہوریت کا تسلسل، پاکستان مسلم لیگ اس کے لیے ہمیشہ کھڑی رہی ہے اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کے نعرے لگانے والے یہ سن لیں کہ تبدیلی مختلف پارٹی کے باغی اور مختلف پارٹیوں کے داغی ملک میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ عمران خان باغیوں اور داغیوں کے ذریعے ملک میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ لاہور تک ہم نے دیکھا کہ ہم بھی فیل کرتے تھے کہ ٹھیک ہے کچھ نئے لوگ ہمارے خاندان میں آ رہے ہیں، سیاسی خاندان، اس برادری میں، پولیٹیکل برادری میں کوئی جینز ٹی شرٹ والے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کراچی کے جلسے میں وہی لوگ تھے جو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو تبدیلی بالکل آنی چاہیے، لیکن یہ سونامی تباہی کے لیے نہ آئے، یہ سونامی خوش آئین تبدیلی ہونی چاہیے، خوشگوار تبدیلی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، جہاں جہاں ضرورت پڑی، جب ضرورت پڑی، اور آج آپ دیکھیے کہ اداروں کا ٹکراؤ ہونے جا رہا تھا، اداروں کے ٹکراؤ کو روکنے میں بھی ہماری قیادت نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس میں گورنمنٹ میں آنے کا، تو گورنمنٹ میں آنے کا دوبارہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ملک کے استحکام کے لیے آئے تھے اور جمہوریت کو ہم نہیں گرنے دیں گے اور اس تسلسل کو جاری رکھا جائے گا۔ دوسری جانب ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کا تصادم نہیں ہونا چاہیے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ایک ادارے کا کسی ایشو کے اوپر کچھ سمجھ سکتا ہے، دوسرا ادارہ اس ایشو کے اوپر کوئی رائے رکھ سکتا ہے، لیکن اس وقت ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ادارے کسی ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج پولیٹیکل پارٹیز کو، آج اس ملک میں 10 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے۔ آج تمام سیاسی جماعتوں سے درخواست کرتا ہوں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آج ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہیں اور
आम आदमी जो चाह रहा है कि उसकी मदद की जाए, आम आदमी बेचारा अपने मसाइल में घिरा रहे। आज सियासी जमातों को चाहिए जिस अंदाज में इन्होंने नेटो सप्लाई का इशू हो या शमसी एयरबेस का, हम एक कौम बने, एक कौम बन करके हमने फैसला किया तो आज अमेरिकन भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अपना नेटो सप्लाई बंद है आज तक और शमसी से भी वो लोग दफ़ा हो गए हैं। हमें समझते आवाम के मसाइल के लिए भी हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और ठीक है, जब इलेक्शन अनाउंस हो उसके बाद वो कहते हैं सिंधी में कि 15 बदी ऐसा भली मैदान में अचूँ। आज हमें सबको इकट्ठा होकर, अगर हम आवाम के दोस्त हैं, अगर हम इस पाकिस्तान की आवाम जो मसाइल का शिकार है, अगर हम उसके लिए भलाई चाहते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तीन, हम समझते 3 E's, एजुकेशन, इकॉनमी एंड एनर्जी, इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर एक जामिया मनसूबाबंदी बनानी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसमें तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसमें साथ आगे बैठें और इस मुल्क में अगर एनर्जी होगी तो मामला ठीक होंगे, हमारी इकॉनमी ठीक होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। और एजुकेशन हमारा बेस है, हमारी बुनियाद है। हम चाहते हैं आज इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 106वें इस सालगिरह के मौके पर मैं एक अपील करता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज से कि खुदा के वास्ते इस 1.5 साल को बर्दाश्त कर लो। और पीपल्स पार्टी से भी कहता हूँ कि अगर आपकी कोई गलतियाँ हैं तो उनको ठीक करो। अगर आपने आवाम को डिलीवर नहीं किया, आवाम को डिलीवर करो। आपको हुकूमत जाने का कोई खदशा नहीं है। आपका बजट हमने पास करवा दिया, आपको हर सपोर्ट हमने की। इस इशू के ऊपर भी कि जब इदारों का टकराव हो गया था, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही ने खुद फिज़िकली आपकी मदद की है। जब हम आपके साथ खड़े हैं, आईनी तौर पे आपकी हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता, तो खुदा के वास्ते अवाम के लिए कोई अच्छे फैसले करो। इस 1.5 साल में अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए कोई फैसले करो। हम आपके साथ खड़े हैं और अपोजिशन से भी कहते हैं साथ आओ, ताकि अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं जिसके तरफ अवाम हमें देख रही है, हम उसमें डिलीवर कर सकें। और आप सबको भी मैं आज अपनी 106वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सियासी पार्टियों के, सियासी कारकुनों के, सियासी लोगों के एक दूसरे से राब्ते जारी रखते हैं, लेकिन मैंने जो बात की है कि आज जो है तहरीक इंसाफ में जो बागी और जो दूसरी पार्टियों के दागी जा रहे हैं, उससे वो चेंज का नारा हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम लीगी हैं, कल भी मुस्लिम लीगी थे, आज भी मुस्लिम लीगी हैं और आइंदा भी मुस्लिम लीगी रहेंगे। और इस मुल्क को मुस्लिम लीग ने बनाया और मुस्लिम लीग ही उस मुल्क को बचाएगी। देखिए जी, मैंने पहले बताया कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो आप हैं, इस मुल्क की सलामती है तो सब कुछ है। अगर हम इस वक्त पीपल पार्टी को तनहा छोड़ देते तो शायद वो अपने हटाए जाने के खौफ में खुदा न खास्ता गलत फैसले न कर जाती। इसलिए हमने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए पीपल पार्टी का साथ दिया है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि जमहूरी इदारे अपना टाइम पूरा करें, लेकिन जमहूरी हुकूमतों का भी फ़र्ज़ है कि वो आवाम की रिलीफ के लिए अहम फ़ैसले करें, इसलिए कि हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी हुकूमत कानूनी तौर पर नहीं जाती। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ा फ़ैसला नहीं है। मेमो गेट एक इशू है और उस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए। तो ठीक है, अगर मेंटेनेबल है तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि मेमो गेट इशू की वजह से इदारों का कोई टकराव है या मेमो गेट स्कैंडल की वजह से किसी भी हुकूमत को कोई ख़तरा है। देखिए, आप सब ने देखा कि चौधरी शुजात साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकातें की और मैंने पहले कहा कि इस मामले को टकराव की तरफ ले जाया जा रहा था और उसको उन्होंने सीज़ फायर करा दिया है। अब एक फ़ैसला आया है, ठीक है, पार्लियामेंट भी बाइख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट भी बाइख्तियार है। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो भी आ जाए। देखिए जी, मुस्लिम लीग का कारकुन खा किसी भी जमात में हो, वो इत्तेहाद चाहता है, लेकिन अफसोस के मुस्लिम लीग के लीडर अपनी अना की खातिर इत्तेहाद नहीं चाहते हैं। तो मुस्लिम लीग का कारकुन और अब तो कारकुन से बढ़कर जो मुस्लिम लीग की जो सेकंड लाइन है, वो भी सब मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जब तक लीडर अपनी अना को नहीं छोड़ेंगे, मुस्लिम लीग का इत्तेहाद मुझे होता नज़र नहीं आता। ॻाल्हि इहा त सिंध हुकूमत सां जेके बि इशूज़ आहिनि असांजा, इहो इन जा ॿ पहलू आहिनि। हिकिड़ो आहे त असां चाहियूं था त असांजा इख़्तिलाफ़ात आहिनि असांजे इशूज़ जी बुनियाद ते, नज़रिए जी बुनियाद ते, त असांखे जेॾी महिल ताईं रिलीफ असांजे कारकुननि खे, वर्करनि खे, सपोर्टर्स खे, आवाम खे जेके असांखे ॾिसे थी, उन्हनि खे न मिलंदो, असां बेइख्तियार थी हुकूमत में नथा वेहणु चाहियूं। पर असां हुकूमत खे डिस्टेबलाइज़ नथा करणु चाहियूं। असांजो मतिलबु आहे असांखां कमु वठिणो आहे, असां कम वारा माण्हू आहियूं, असांखे रोल ॾिनो वञे प्रॉपर। रुगो असांखे झंडे ऐं दफ़्तर लाइ असांखे मिनिस्ट्रियूं न खपनि,
इन के अलावा भी असां इन्हनि खे डिस्टेबलाइज़ नथा करणु चाहियूं। ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि चऊं था, असांजे इत्तेहाद के प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के अलावा हमारे PMLQ के इत्तेहाद को किसी ने दिल से तस्लीम किया नहीं है। वो चाहते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में PMLQ की लीडरशिप पीपल पार्टी के साथ खड़ी हुई है, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उस इत्तेहाद को चलना चाहिए, लेकिन अफसोस कि उनके सिंध की लीडरशिप शायद अपने प्रेसिडेंट के मैसेज को समझ नहीं पा रही। हमारे इख्तलाफ अपनी जगह, मेरे पास बिल्कुल मैंने चार्ज नहीं लिया हुआ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि वो 90 लाख लोग सैलाब मुतासरीन वो मुजफ्फर शुजरा और हलीम आदिल के दरमियान में फंस जाएं। ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। शुजरा साहब सुठो माण्हू हुआ, ऑनेस्ट माण्हू हुआ, मेहनती माण्हू हुआ, जब वो डिलीवर कर रहे थे ठीक है, बेशक उनके पास हो, हमें खुश करने के लिए, हमें पूरा करने के लिए मुझे रिलीफ दे दिया, उनको रिहेबिलिटेशन ना वो पूरा काम कर सके ना मैं पूरा कर सकूं, तो मैंने इसलिए वॉलंटियरली मैंने कहा कि नहीं बेशक वो काम करे, मैंने चार्ज नहीं लिया है। और बात यह है कि जब तक मेरे कारकुनों को या तो हमें हुकूमत में होना चाहिए या अपोजिशन में, अब ना हम ही में हैं ना शी में हैं, उसलिए हमने अपना एक एतराज़ डाला हुआ है आखिर में, लेकिन हम इनको मतलब गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं होने देना चाह रहे। देखिए जी, यहाँ तो टुकड़े आप देख लीजिए कि किस किस के नहीं हुए। आज जो 1970 में भी पार्टियाँ बनी उनके भी टुकड़े हो गए, और एक छोटी सी अगर कॉम्प्रेस पार्टी है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा, उनके भी 20-20 टुकड़े हुए हैं। बड़ी पार्टी है, ग्रुप्स बनते रहते हैं जी। नहीं, अल्लाह ना करे, मैं चाहता हूँ कि ये अब दोबारा इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन बड़ी पार्टीज़ में हल्के कुछ इख्तलाफात होते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक भी जिस दिन तक हरे झंडे का और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुस्लिम लीग, और हरे कपड़ा आज मैंने मुस्लिम लीग की ड्रेस भी पहना हुआ है, ये जिंदा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत रहेगा। ये टॉपिक KEC का नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह KEC का हाई कोर्ट का 15 तारीख को ऑर्डर आ चुका है, जिसमें हाई कोर्ट ने KEC के ख़िलाफ़ फैसला दे दिया है। और KEC खुद, मैंने उसको 5 करोड़ का KEC के ख़िलाफ़ हर जाने का दावा किया था। KEC ने तो आपको सॉरी 50 करोड़ का, KEC ने कहा जी हमने तो आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मीडिया ने आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया है। तो KEC हमारी और मीडिया की लड़ाई कराना चाह रही है। और मैंने खुद KEC के इल्ज़ाम के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आके, और मैंने उसमें कहा था कि हाई कोर्ट में केस है, 15 को हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हुआ हूँ, और अब मैं एक मुतासिर के तौर पे KEC की एक एक्शन कमेटी को लीड कर रहा हूँ। और KEC ने जिस अंदाज में इस कराची के 2 करोड़ शहरियों का खून चूस रखा है, 9 अरब रुपए हर महीने कराची के शहरियों के जेब से निकाल के ले जाते हैं, जिस अंदाज में शहर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसके दिल करो बिजली काट दो, मीटर बाहर है उसको सुराख कर दो, चोरी बना दो, PMT उठा लो, इसके ख़िलाफ़ में ये चूँकि एक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और ये बुनियादी हुकूक में आता है, तो इंशाल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अपील करता हूँ इसमें सोए मोटो एक्शन लें। और मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं भरपूर वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा, और मैं चीफ जस्टिस को जाके केस भी दाखिल कराने जा रहा हूँ।